now today is the 2nd June 2025 Monday, and we are going to do the guideline combined hormonal contraception. This is a very big guideline. I am trying to make it short it for the theory point of view, which is the important point. We are going to do it. Okay. So in the combined hormonal contraception, we have to understand there is two things which we call it. Some they call COC and some they call CHC. So there is a difference between COC and there is a difference between CHC. In front of you, it is coming CHC. It is means combined hormonal contraception. So it will consist of three things. It will be pills, patch, and the ring. Pill, patch, and the ring. This is called combined hormonal contraception. But if it is come COC, COC means only combined oral contraceptive. So it means oral. It is not the ring, patch. All the three things will come. So that's the thing we have to know about the combined hormonal contraception. So we'll talk about today about the theory point of view. So we already know we have to have three things in with us, and then he say this means there is a different methods of the use of this, which we call it combined hormonal contraception. Means what? The usage of the method, which we call it different method. We will go down a stair, then we will make it. But just we have to remember there is a different method: Taylor method, continuous method, and normal methods, which we have to know it. What is this meaning it? If it is come in the question in the exam. Okay, then we have to give. We then they are telling it this CHC consists of two hormones. Okay, two hormones, estrogen and the progesterone. So estrogen will be the one ethinyl estradiol. Please remember this word. Estrogen, it is ethinyl estradiol. Okay, and progesterone, they can make a different combination of the progesterone and they can change it, and mostly they will start on the day 5. This is the normal way of starting the this cycle in the menstrual cycle. Day 5 they will start about this contraception. Okay, whatever contraception we have it. Then he say then he is telling that combine CHC we can fit to the woman. We can start any time if she is eligible, any time of the cycle. If she is eligible, and it means we are confirmed that she is not pregnant. This is the criteria to start any time of the menses. Then he is talking about effectiveness. How effective this contraception? How means effective they are? They are the one means they are saying they are 98 to 99% effective, and 1% failure rate is there, the failure rate. So they are saying it, that means even she is using the contraception, she become pregnant. This is, we call it failure rate. Okay, this is the effectiveness. Then he is telling it when she is coming for us, any patient come requesting for the CSC, we have to inform all methods. The patient has, we have to know the all methods. Then he is talking about this about the body mass index, BMI. When somebody is taking CSC, he is saying there is no relation of if she will take IUCD, if she is if sorry there is no association between COC. COC, no association. Okay, oral contraception, there is no association of weight, but there is a association of the patch. If her the efficacy will be reduced if she is more than 90 kg, 90 kg, her weight is 90 kg. Okay, the efficacy of the patch will be reduced. This is the done, but COC no. Then he is telling, Dr. Sahab, 1 minute, na, I will just give the answer of the mobile. जी
ओके चलिए फिर इसके बाद क्या कर रहा है डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट है ना, 4-5 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए हिसाब से। जी ठीक है, तो पैच की जो अगर वेट मोर देन 90 होगा तो एफिकेसी डिक्रीज़ हो जाती है। फिर ये कह रहा है कि अगर उसने बैरिएटिक सर्जरी की हुई है पेशेंट ने, उसमें भी एफिकेसी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने कहा है कि एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स अगर कोई ले रहा है लाइक लेमोट्रोजिन, डॉक्टर साहब लेमोट्रोजिन जो होती है ना एपिलेप्टिक ड्रग है, या फिर वो H2 रिसेप्टर्स ले रहा है, उसको जेंटेक वगैरह इस टाइप की ले रहा है, इसकी वजह से एफिकेसी जो होती है ना इन कॉन्ट्रासेप्शन की डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है। लेमेट्रोजिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स में डिक्रीज़ होती है, बैरिएटिक सर्जरी में, और पैच की। ये जो है ना इनका आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये कह जी रहा है कि जब एनी टाइम ऑफ द साइकिल, जब हम सॉरी 1 second, आई विल जस्ट टेक अ वाटर, 1 minute, आई एम कमिंग। ओके फिर ये कह रहा है, फिर इसने ये बात कही है कि जब एडिशनल प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती अगर वो एंटीबायोटिक ले रही है अदर देन नॉन एंजाइमिंग मींस एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स, तो उसमें ज़रूरत नहीं है कोई और एडिशनल की यूज़ करने की। मगर हाँ, अगर वो एंजाइम इंड्यूसिंग ले रही है मेडिकेशन और उसको ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्शन नहीं उसको मत्थे लगना है, शी वांटेड इट दैट वन, देन शी हैज़ टू टेक प्रिकॉशंस, एडिशनल प्रिकॉशन मींस like she has to use the condom, or this is the main important thing there, this they are calling it. So नॉन एंजाइम में कोई मसला नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन नॉन एंजाइम, no need to use additional contraception. Then he is talking about if she is using this ulipristal acetate, okay, as an emergency contraception, so she has to wait 5 days, then she can start the contraception, emergency contraception. If she is taking UPA, ulipristal acetate, these are the progesterone receptor modulators, okay. So if she is taking this progesterone, then she has to wait 5 days to start the other medication, this contraception, okay. That's what he say. Then he say that until that time, means waiting time, she has to take condom or she has to make the abstinence from the sex. These two things she has to do. Okay, then he say what he is telling, what are the effectiveness. Okay, if there is a vomiting and severe diarrhea, effectiveness decrease. You have to remember, please don't forget, this is a very important MCQ question, that the vomiting within 3 hours of taking the tablet, she is having a vomiting, she has to take another dose, please remember. And if she is having a severe diarrhea 2 to 3 times, then she has to repeat the dose, okay. The effectiveness is going to be decreased, okay. Then what he is telling it, what are the डॉक्टर साहब दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसके नॉन कंट्रासेप्टिव और कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स कौन से हैं। अभी हम नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट्स की बात करते हैं। नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट में क्या होगा डॉक्टर साहब, किसी पेशेंट को अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से इसका मेंस्ट्रुअल फ्लो डिक्रीज़ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं COC। और अगर पेशेंट को डिस्मेनोरिया है उसमें हम यूज़ करते हैं, ये इम्प्रूव करता है, और एक्नी को भी इम्प्रूव करता है। तो 3 चीज़ हमें ये मिल गई। और चौथी चीज़ क्या हुई कि PMS जो होता है ना उसमें ये यूज़ होती है, PMS में यूज़ होता है, एंडोमेट्रियोसिस में ये यूज़ होता है, PCO में ये यूज़ होता है, ठीक है, रेगुलर मेंसेस करने के लिए। जी और ये आपको याद करने MCQ का क्वेश्चन बहुत होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिड्यूस करता है रिस्क। डॉक्टर साहब ये अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, अभी हम कर रहे थे ना ये वाली जो बुक की थी, तो उसमें ये क्या होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क है ना इसको डिक्रीज़ करता है, प्लीज़ रिमेंबर। और कोलोरेक्टल, तो 3 कैंसर हैं जिनके ये रिड्यूस करता है COC CHC। 3 कैंसर है, कैंसर एंडोमेट्रियल, ओवेरियन एंड द कोलोरेक्टल, 3 कैंसर है, मगर 2 कैंसर जो है ना उनको इंक्रीज़ करता है। अच्छा, ये इनको डिक्रीज, हाँ जी। तो वो आपने याद करना है, और आपने ये याद करना है कि हाई रिस्क हाई रिस्क हाई रिस्क,
ये याद रखिएगा कि हाई रिस्क ऑफ डीवीटी और वीटीओ होता है, हाई रिस्क होता है इसका, इंक्रीज रिस्क ऑफ वीटीई का इसको होता है इसके यूज़ करने से। मतलब इसके हम बात कर रहे थे इसके रिस्क क्या होते हैं, हेल्थ रिस्क क्या होंगे अगर हम ये CSC यूज़ करेंगे ना, तो उसके हेल्थ रिस्क क्या होंगे। बेनिफिट तो हमने बता दिया, अब रिस्क की भी तो बात करेंगे ना। तो रिस्क क्या होंगे, इसको इंक्रीज रिस्क ऑफ वीटी होगा और इसका स्मॉल इंक्रीज़ होगा, स्मॉल इंक्रीज रिस्क। एक होता है 4 फोल्ड इंक्रीज़ होता है ये वाला डीवीटी का रिस्क जो 4 फोल्ड है, ठीक है जी। मगर जो अगर हम करते हैं इसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन की और इस्चेमिक स्ट्रोक की, तो ये स्मॉल रिस्क है। ये दो जो है ना ये स्मॉल रिस्क है। डीवीटी 4 फोल्ड रिस्क होता है, इंक्रीज़ करता है। और चीज़ फिर ये क्या कह रहा है कि बट ये आल्सो इसमें भी स्मॉल रिस्क है जो इंक्रीज़ करता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड इस्चेमिक स्ट्रोक, ये भी स्मॉल है। और एडिशनल रिस्क क्या होता है, इसको किसी पेशेंट को आर्टीरियल डिजीज़ है तो ये इसके भी इंक्रीज़ करता है। डॉक्टर साहब हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट वो वाला याद है। अच्छा, और दूसरे ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज रिस्क करता है, स्मॉल रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, ये हम नहीं कहेंगे कि हाई रिस्क है, स्मॉल रिस्क है। ब्रेस्ट कैंसर का स्मॉल रिस्क है। और इसमें क्या होगा, मोर देन 5 ईयर से ज़्यादा अगर हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो स्मॉल रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर का, मोर देन 5 ईयर यूज़। तो सर्वाइकल कैंसर का इंक्रीज रिस्क होता है। देखिए 2 कैंसर इंक्रीज होते हैं, 3 डिक्रीज़ होते हैं। 2 ब्रेस्ट और सर्वाइकल इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज एंडोमेट्रियल, ओवेरियन एंड कोलोरेक्टल। तो आपने ऐसे याद करना है इसको। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल शॉर्ट करें, मेरा तो दिमाग सर में दर्द हो ये पढ़ती हूँ जिसको पता नहीं पागल लोग हैं, इतनी 80 पेजेस के बना देते हैं। और इसमें ये डॉक्टर साहब क्या होता है कि अंग्रेज़ जब बनाते हैं ना इतनी बड़ी बड़ी गाइडलाइनें, इनको इतने ही पैसे मिलते हैं, एक चीज़ को 10 दफ़ा रिपीट करते हैं, पैसे जितने पेज बनेंगे पैसे होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितनी भी कोई सी भी हम CSC यूज़ करते हैं इसका मेडिकल क्राइटेरिया होता है। ओके, UK मैक 1 2 3 4, तो वो अब हम कर लेंगे उसको। अगर ये क्राइटेरिया को कर रही है तो हम शुरू करते हैं, वरना नहीं करते। अगर उसको जैसे कोई DVT है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है DVT की, थ्रोम्बोफिलिया की उसको हिस्ट्री है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको हिस्ट्री हो गई है कि ये इसको DVT हुआ, तो डॉक्टर साहब ये रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ना मेडिकली एलिजिबल नहीं होते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर हमने मेडिकल एलिजिबिलिटी उसकी हम जिसको देखें ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, खाली हम जो इसका हमने ब्लड प्रेशर को नोट करते हैं और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ये शुरू करने से पहले ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर, BMI देखते हैं, ब्लड प्रेशर भी देखते हैं, BMI देखते हैं। PV एग्ज़ामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन है वी विल डू द PV एग्ज़ामिनेशन, नो, PV एग्ज़ामिनेशन नहीं करते, ओनली BMI देखते हैं और ब्लड प्रेशर देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और जो अगर जो ब्रेस्ट की, सर्वाइकल की और थ्रोम्बोफिलिया की, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटिक मेलाइटस, लीवर फंक्शन का, ऑल जो ब्ला पे ना, वो जो उसकी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें याद, इतना हमारा दिमाग नहीं है कि हम इतनी चीज़ें याद करेंगे। तो बस और इसके अलावा कुछ नहीं करना होता, खाली ब्लड प्रेशर देखना होता है और क्या नाम है इसका, पेल्विक एग्ज़ाम, BMI देखना होता है। ओनली दो चीज़ देखनी होगी हमें, BMI और ब्लड प्रेशर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं देखते हैं इसको शुरू करने से। और जो अगर जिनको ये CSC अनसूटेबल है तो उसको हम अल्टरनेटिव बताएंगे। अल्टरनेटिव कौन सा है, लार्क देते हैं, लार्क है इसका अल्टरनेटिव। अच्छा, डोज कितना शुरू करेंगे, लेस देन 30 माइक्रोग्राम एथेनाइल एस्ट्राडाल। एस्ट्रोजन का जो डोज होगा ना ये इतना होगा, इथेनाइल एस्ट्राडाल विद कम्बिनेशन ऑफ लिविन और जेस्ट्रेल, ये दो चीज़ें मिली हुई होंगी। 30 माइक्रोग्राम से हम डोज शुरू करेंगे और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। मैक्सिमम 35 लेते हैं, 35 माइक्रोग्राम, इससे ज़्यादा हम नहीं डोज देते, क्योंकि जितना डोज बढ़ेगा उसको DVT का रिस्क बढ़ेगा, इस वजह से ये ज़्यादा डोज नहीं देते हैं, ठीक है जी। अब बात ये कर रहा है कि क्या नाम है, अच्छा ये जो कहाँ मिलती हैं, तो ये मतलब कंट्रासेप्शन बाहर के मुल्कों में ये होता है कि इनके क्लिनिक्स होते हैं, गम क्लिनिक है, GP क्लिनिक है, कम्युनिटी मेडिसन, कम्युनिटी की इनकी GP की होती हैं इनकी,
और हेल्प करते हैं, वो उनको देते हैं। 1 साल की सप्लाई मुफ्त मिलती है, ठीक है, सप्लाई मुफ्त मिलती है। मगर जो आईयूसीडी होता है ना, ये ओवर द काउंटर नहीं मिलता, आईयूसीडी नहीं मिलता, ये मिल जाती हैं, टके टके की दर्द होती हैं। और फिर क्या कह रहा है, 1 साल की सप्लाई के बाद जो होता है ना, तो उसका एग्ज़ामिनेशन होता है, फॉलोअप होता है, ईयरली फॉलोअप ठीक। होता है। अगर ये मेडिकेशन ले रही है तो ईयरली फॉलोअप करेगी, ईयरली फॉलोअप होता है, ठीक है, एनुअल फॉलोअप होता है, रूटीन में जो उसका होता है ना फॉलोअप होता है, रूटीन है। अच्छा आप, ओह माय गॉड, आप पे घंटी बज रही है? जी, बस एक मिनट। मेरी भी साथ में बज रही है, आप अपनी देखें, मैं भी देखती हूँ। इस रिकॉर्डिंग में ये मसला है कि आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते हो। ओके, शुरू करूँ डॉक्टर साहब? जी। ओके, चले, आप अपना वो करती रहिए, मेरी ये भी सुन, मैं करती रहती हूँ, आप अपना कर ले, कोई मसला नहीं है। फिर ये कह रहा है कि ये अगर वो ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल की उसकी हिस्ट्री है मोर देन 4 आवर, उसको अगर ट्रैवल करना और मोबाइल नहीं रहेगी, तो उसको ये जो जो कॉन्ट्रासेप्शन ले रही है, शी हैज़ टू एडवाइस रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ इमोबिलिटी, मतलब ट्रैवलिंग के दरमियान कोशिश करे कि वो ट्रैवल करे, उसकी फ़्लाइट के ऊपर है। तो और वो अगर हाई जी। एल्टीट्यूड पे रहती है तो उसको भी इंक्रीज रिस्क होता है। विद इन 1 वीक शी हैज़ टू स्टॉप बिफोर गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड। ओके। एक तो चीज़ ये भी हो गया, और उसको ये होगा कि ये दूसरी जो क्या कहलाती है, कोई भी आल्ट, और जब अगर वो सर्जरी पे जा रही है, डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, अगर वो जी। सर्जरी पे जा रही है तो शी हैज़ टू स्टॉप दिस CSC 4 वीक्स, 4 वीक्स, 4 वीक, 4 वीक, ओके। ये हमने कारनामा जी। अंजाम देना है, और फिर हमने क्या करना है, वो क्या नाम है, कब तक हम यूज़ कर सकते हैं इसको, 50 ईयर्स की एज तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। और उससे उस 50 ईयर्स की एज के ऊपर तक हम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। और जब अगर हम या तो अगर फिर 50 ईयर्स से अगर अल्टरनेटिव उसको हम HRT दे रहे हैं ना, तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, जी, ठीक। इतना काफ़ी है, इतना ही, इससे ज़्यादा की, क्योंकि बहुत, हाँ, ठीक थोड़ी है। एक दो चीज़ें बता दूँ, हाँ, नीचे से जो मैंने लाइन लगाई थी मैं भूल गई। अच्छा, ये जो होता है ना, एक्चुअल जो डोज आजकल जो यूज़ होता है, ये मैक्सिमम होता है 35 माइक्रोग्राम जी, इथेनाइल जी। ईस्ट्राडेल और विद लेवेनॉर्जेस्ट्रल, ओके, दो ये यूज़ होते हैं इसमें। और इसका जो फेलियर रेट है लेस देन 1% है। CSC का जो यूज़ होता है ना, 1% जी, होता है फेलियर रेट, 1% प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक। ठीक है, 1% होता है। हेल्थ रिस्क वगैरह हमने बातें सारी कर ली हैं, बेनिफिट भी हमने बात कर लिया, रिस्क की भी हमने बात कर ली है। ये इतनी बड़ी शैतान की आंख जो गाइडलाइन है ना, उसकी सारी बकवास ही है। हाँ, ये वाले चीज़ आपको याद करनी है, प्लीज़, ये उसमें से गाइडलाइंस में से देख लीजिएगा, वरना इसमें से निकाल के ये कर लीजिएगा। ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, ये फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, नॉरहेथाइस्टोरेन के नाम से, स्टेरॉन के नाम से ठीक। यूज़ होता है। सेकंड जो जनरेशन है लेवोनोजेस्ट्रिन। ना, हाँ जी, ये 4 आपको नाम याद करने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके ठीक। बगैर आपका काम नहीं चलेगा। जी। और कितने मेथड अवेलेबल हैं CSC के मैंने आपको बताया था, एक पिल्स, पैच एंड रिंग होती है, 3 अवेलेबल हैं इसके मेथड जो होते हैं ना, 3 अवेलेबल मेथड होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टाइप कितने टाइप की होती है, मेजॉरिटी जो होती है ना, टाइप जो यूज़ होती है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड मल्टीफेजिक होता है। मोनोफेजिक में क्या होती है, एक ही कलर्स की होती है, 1 कलर की टैबलेट्स होती हैं, और उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो डोज होता है ना, सेम होता है, चेंज नहीं होता। मगर ठीक। बाईफेजिक में क्या होता है कि 2 तरह का कलर होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो है ना, डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज़ होती है।
फर्स्ट हाफ में कितनी यूज़ होगी, सेकेंड हाफ का कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट वन होती जी है। और ट्राईफेजिक में क्या होता है, 3 कलर की होती हैं, ये 3 कलर की क्या होती हैं, मगर ये ट्राईफेजिक बहुत कम इस्तेमाल होती हैं क्योंकि इसमें हाई डोज होता है और इन पे हाई रिस्क हो जाता है डीबीटी का, इसलिए ये कम ही इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब उसने कहा है कि ये जो CSC जो होती है ना, कैसे वर्क करती है। वर्क क्या मतलब, ये कैसे करने का, इनका मैकेनिज़्म क्या है। इनका मैकेनिज़्म है प्रिवेंशन ऑफ द ओवुलेशन, ओवुलेशन ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। और ये क्या करता है कि ये सप्रेस करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को, ताकि वो जो शर्ट जा रहा है ना, LHFS का जो शर्ट है, जी उसको जी ये रोकता है, और उसको रोकने के बाद इनहिबिट कर देता है ओवुलेशन को। बस ये इतना सा याद करना, ये प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन करता है, ये याद रखिएगा। और अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रही थी कि इसके मतलब यूज़ करने के क्या क्या तरीके। एक टेलर्ड मेथड होता है, ठहरे पहले आपको मैं बताऊँ, एक सेकंड बताती हूँ, अभी मैं पहले ये कर ले। अच्छा, वो जो पिल फ्री पीरियड होता है ना, उसको क्या जी कहते जी हैं, हार्मोन फ्री इंडेक्स हार्मोन कहता है। ओके, तो ये जो होता है ना, ये अभी बताती हूँ। देख, एक तो मेथड है टेलर मेथड है, एक स्टैंडर्ड मेथड है, और ये टेलर मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जी मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ पसंद है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये जो बना हुआ ना आपके सामने पैराग्राफ आ रहा है, ये हर चीज़ का हल है, जी मैंने ग्रुप में भी लगाया था पहले, अब आप इससे याद कर लीजिएगा। एक तो होता है टाइप ऑफ रिजीम में क्या आ जाएगा, एक तो होगा स्टैंडर्ड यूज़ क्या होता है। 21 दिन हमने यूज़ किया टैबलेट, चाहे वो पिल्स हों, पैच हों, और वो जो होता है ना पैच, वो पैच तो वीकली होता है। रिंग जो होता है ना, एक दफ़ा डल जाता है, बस बात ख़त्म हो जाती है। पैच जो होता है ना, वीकली बदल जाता है। अच्छा, पिल फ्री पीरियड इंडेक्स का ये जो है ना, इसका 7 डेज़ है। और टेलर्ड यूज़ में हम क्या करते हैं, 4 डे देते हैं उसको, जो मेंसेस ख़त्म होने के बाद दूसरी साइकिल जो शुरू होगी ना, 4 दिन बाद होती है। और एक होती है एक्सटेंडेड यूज़ में, क्या होता है कि हार्मोन फ्री इंडेक्स जो कहलाता है ना, इंटरवल, सॉरी, हार्मोन फ्री जी इंटरवल जो कहलाता है 4 to 7 होता है, 4 दिनों या 7 दिनों, उनकी मर्ज़ी है। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है, 4 दिन होते हैं। और कंटिन्यूस में आंटी क्या होती है, कंटिन्यूस यूज़ करती हैं। कंटिन्यूस मतलब 3 महीने यूज़ कर लेंगी, या फिर वो बिल्कुल कंटिन्यूस ही यूज़ करेंगी। ट्राई साइकिलिंग होता है, ये कहलाता है। या फिर कंटिन्यूस करते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो उसमें रोकते नहीं हैं, कंटिन्यूस यूज़ होता है। रोकते जब हैं कि जब ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग खुद ही हो जाए, किसी के जी कहे बगैर खुद ही ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग अगर हो जाती है, तो फिर उसमें जो है ना, फिर उसको रोक के फिर हम 4 दिन बाद इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर वो ब्लीडिंग हो रही है तो 4 दिन तक हम देखते हैं, और चौथे दिन हम स्टार्ट करते हैं जो भी कुछ हमें करना होगा। ये वाली बात होगी। अफेक्टिवनेस डॉक्टर साहब हम कर चुके हैं, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अनफ, अल्हम्दुलिल्लाह, जान छुटी।